Hello everyone. How to score 40 out of 40 in physics good set examination. In this video I will be taking you towards various MCQs which are very important MCQs chapter wise. Yes, we will be dealing with all the 14 chapters of physics wherein our today's plan, first lecture, it's about the first chapter, electric charges and electric fields. On an average, we have taken 500 plus MCQs in this 10 to 12 days. So stay tuned in this particular channel to score better in physics good set examination. Since you are having negative marking also, so you need to deal with MCQs with very care. So as far as first MCQ is concerned, आपको कैसे काम करना है मैं समझा देता हूँ क्योंकि मैं बहुत जल्दी से इसको स्लाइड डाउन करूँगा. I'll be guiding you for various important MCQs. मेरे को लगा कि इसमें ध्यान देने लायक है तो मैं आपको बोलूँगा, वरना मैं आपको सिर्फ हिंट देके आगे बढ़ जाऊँगा. आपको क्या करना है, जरूरी चीज़ें लेके बैठ जाना है और जैसे ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो, आपको अपने आप सोचना है. आप स्क्रीन पॉज करके अपना आंसर सोच सकते हो. अगर आपको कोई आंसर प्रॉपर ना मिले तो फिर से प्ले करके आप हिंट समझ के उसको सॉल्व कर सकते हो. दिस आर दी वेरी फेमस MCQs which are already asked in board as well as good set examination. So as far as first MCQ is concerned, figure shows electric field. Electric field आपको दिखाई गई है in which electric dipole is placed. Which of the following statement is correct? अब ये डायपोल रखा है माइनस क्यू प्लस क्यू. डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. सो वी फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. सो यू आर हैविंग दी electric dipole moment is directed towards this way from negative charge to positive charge. अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो डाइपोल के ऊपर फोर्स लगता है वो मतलब चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगता है, देखिए आप, जैसे कि माइनस क्यू के ऊपर फोर्स किस तरफ लगता है? इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये माइनस क्यू पे लगेगा फोर्स इस तरफ, द फोर्स विच इज एक्टिंग इज टुवर्ड्स दिस वे. एंड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा. इट्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. दिस इज टुवर्ड्स राइट साइड, दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. सो वो लोग पूछ रहे हैं कि ये डाइपोल किस तरफ शिफ्ट होगा. तो ये डिपेंड करता है कि डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कौन से पोर्शन में रखा है. तो आप देखो अगर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेयर हियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी डिस्टिंक्ट अपार्ट. मतलब तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, तो ये वाला फोर्स कम है और ये वाला फोर्स ज्यादा है. तो सीधी सी बात है, ये डाइपोल शिफ्ट होएगा किस तरफ? टुवर्ड्स द राइट साइड. सो डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द लेफ्ट. Dipole will experience a net force towards the right. Dipole will not experience any force, or dipole will experience a force upward direction. That's what I have talked of. Towards the right side is the net force. Yeah, let's move further. The dimensional formula of electric flux, very easy. Electric flux phi is equal to EA cos theta. इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का आप मल्टीप्लिकेशन करके इजीली आप डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हो. ट्राई दिस बाय योर ओन, इट्स वेरी इजी. एज फार एज आंसर की, एंटायर आंसर की इज कंसर्न, आई विल बी पोस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन, सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. बट आई विल बी पुटिंग दैट आंसर की लेटर ऑन द सेम डे टुडे इटसेल्फ. बट I want you all to do this particular MCQs by your own. Later on we'll be moving towards the answer keys. A plastic rod rubbed with wool is found to have negative charge. This is the negative charge, 8 into 10 to the power minus 7 coulomb. The number of electron transferred. This was also asked, kind of this question was also asked in February 2025. So what you should be doing in this particular part? Just a minute, sorry. Yeah, so here you are given the charge and number of electrons. You can visualize the formula Q is equal to NE and you will be getting the answer of number of electrons transferred. You can easily calculate that particular part. Yeah, if you are having doubt, you can post it in the comment section. I will be guiding you. Else nothing is needed as far as this particular question is concerned. Yeah, moving further. How much charge should be placed on a spherical shell of radius 25 cm to have a surface charge density of 3 upon pi coulomb per meter square? Yeah, it's coulomb per meter square. What we can do in this particular part?
Yeah, we can utilize the formula of surface charge density. What is the formula of surface charge density? Sigma is equal to charge upon area. Since it is a spherical shell, area will be 4 pi r square. While dealing with this particular radiuses, you must be converting that particular dimension into SI units. Yeah, that you must be knowing it nicely. Again, calculate by your own. This is the hint which you should be focusing on as far as this question is concerned. Let's move further. The Coulombian repulsive force between two alpha particles. Yeah, this is a good example. Kept at a distance of 3 centimeter. So what I should be doing in this particular thing is, I should give you this hint about what are the alpha particles made up of. Alpha particles means it's helium nucleus. So they are having the charge of plus 2e. So Q1 is also plus 2e, Q2 is also plus 2e, and distance is 3 centimeter. Yeah, so convert that into SI unit, and then further on, F is equal to, since they have asked, what is the force? So K Q1 Q2 upon R square, as simple as that. Solve and find out the possible answer from this given options. Consider a uniform electric field. This is the electric field which you are given. The electric flux through a square. Okay, this square of 20 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane. What I used to do is this, considering this as K caret. Yeah, 3 into 10 to the power 3 K caret. That means electric field is towards Z axis, and the square he is having the plane in YZ plane. तो तीसरा डायमेंशन है वो उसका एरिया वेक्टर है, एज सिंपल एज दैट. तो एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में होएगा? एक्स एक्सिस. या दैट्स आई कैरेट, व्हाटएवर इट मे बी. सो बिकॉज सिंस इट इज अ स्क्वायर, एल स्क्वायर इनटू आई कैरेट. अब फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है? ई डॉट ए. सीधी सी बात है, के कैरेट और ये आई कैरेट है, तो आंसर तो जीरो आएगा. हियरिंग वेरी सिंपल. सो you are supposed to deal with 40 MCQs in 1 hour, so you need to be little speedy also. So ये practice करने से ही आएगा. Figure shows the electric field lines of 4 point charges A, B, C, E and D. Which charge has maximum magnitude? अब ये judgmental question है जिसमें आपको फिगर देख के आंसर देना है. अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तहत आंसर दे सकते हो, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल +2 कूलम में से अगर +2 कूलम या पॉजिटिव चार्ज में से अगर 4 लाइनें बाहर आ रही हैं, तो 4 में से कितनी आएगी? 8 आएगी. तो आपको देख लेना है कि कौन से चार्ज के अंदर, मतलब कौन से चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है. सो दैट विल बी हैविंग द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड. सो हियर वी कैन सी लाइक डी इज हैविंग 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विद इट. यहाँ पे बी देखेंगे और सी देखेंगे, तो सी में से बहुत सारी लाइंस निकल रही है. यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख सकते हो. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन से लाइक सी विल बी हैविंग अ लिटिल मोर मैग्नीट्यूड. व्हाई? बिकॉज यहाँ से बहुत सारी लाइंस बाहर निकल रही है, यहाँ से भी ऊपर से भी ज़्यादा निकल रही है. तो आप अगर पर्टिकुलर क्या होता है कि डायमेंशन देखे जाते हैं, लेकिन कंसिडरिंग दैट ईच एंड एवरी चार्ज इज हैविंग मतलब सेम मैग्नीट्यूड, डायमेंशन वाइज स्पीयर कंसिडर करके, क्योंकि ये दिया है आपको पॉइंट चार्जेस है क्या. सो हालांकि डायमेंशन मैटर नहीं करता, वेरी सॉरी. पॉइंट चार्जेस आर हैविंग वेरी लेस मैग्नीट्यूड, point charges are having point dimensions. So when not considering that particular aspect, so here is very easy that point C charge will be having the highest magnitude since the number of electric field lines. ये अच्छा वाला था इसलिए मैंने समझा दिया पूरा. Further, a polythene piece rubbed with a wool is found to have negative charge of this. Yeah, this was a question which was asked in February 2025, this year itself. What are the number of electron transfer? You can see it has been asking, it has been asking Goodside 2023. Yeah, so these are the easy questions. Yeah, same formula Q is equal to N लगा के आप easily calculate कर सकते हो. ये आसान है. Dimension formula of electric flux. Yes, again it is repeated. So Goodside 2022 और 24 में पूछा गया था in the last year itself. So same, phi is equal to E dot A. Electric dipole with dipole moment. Yeah, this is a good sum. Dipole moment आपको दी के रखी है. Yeah, P is given to you, is aligned, theta is also given to you 60 degree.
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया है, E इज आल्सो गिवन टू यू. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? वेरी फेमस क्वेश्चन. टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अगर देखें हम तो वो क्या होता है, PE sin थीटा, P क्रॉस E के था. अगेन वेरी इजी, कैलकुलेट करके आप आसानी से आंसर ला सकते हो. आपको अपने आप काम करना है, मैं सिर्फ हिंट प्रोवाइड करूंगा. यहाँ पे क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा. एमसीक्यूज देख देख के नहीं करे जाते. An infinite line charges produces electric field of this. Okay, this is also a very famous MCQ. Why? Because electric field आपको दे के रखी है और infinite line charge है, Gauss law का first application base. R is also given to you. Calculate the electric field produced at a distance of. तो electric field की formula क्या है? Yeah, you are knowing it nicely. Lambda upon 2 pi epsilon 0 into 1 upon R. Everything is constant. So electric field is inversely proportional to radius. तो आप क्या कर सकते हो, E1 upon E2 will be equal to R2 upon R1. सॉल्व करिए, विल गेट द आंसर. वेरी इजी. ऐसे आपको फास्ट करना है काम. As shown in figure, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field. Magnitude electric field का दिए के रखा है. So distance भी दे के रखी है. You are also given the magnitude of electric field. Find the acceleration. Acceleration. Again, this was the part of the question which was asked in February 2025. तो एक्सेलरेशन कैसे ढूंढते हैं भाई? आप जानते हो कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, ये वाला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये के तहत क्यू ई अपॉन एम, डिस्टेंस इज नॉट नीडेड एट ऑल सिंस यू आर आस्क्ड ओनली एक्सेलरेशन. तो क्यू ई अपॉन एम मैग्नीट्यूड रखिए, यू विल गेट द आंसर. फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. या इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? At a distance x and on the equatorial at a distance y. That's also normally taught to every one of you that by electric field on axis होती है 2 kp upon r cube और इक्वेटर पे होती है kp upon r cube. तो जो पूछा है उसके तहत आप ढूंढ लीजिए, आसानी से आपको आंसर आ जाएगा. अगेन क्वेश्चन asked in good set. Two large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces the plates have surface density with the same sign. मान लीजिए दोनों पॉजिटिव साइन है and the plates have surface हाँ okay thin plates है and of magnitude जो भी हो. what is the electric field in the outer region? अब मान लीजिए ये दूसरे नंबर की प्लेट है और पहले नंबर की प्लेट है. आउटर रीजन पे पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है, ये वाले के कारण भी दूर ही जाएगी. दोनों का एडिशन होएगा. एक के कारण कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. तो इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसकी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. यू कैन इजीली सॉल्व इट. ये क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछते हैं. वो लोग ऐसा भी पूछ लेते हैं कि अंदर कितनी होएगी, तो अंदर कितनी होएगी, इसके कारण इस तरफ, इसके कारण इस तरफ, तो 0. या तो वी मस्ट बी रेडी फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. Further, if charge q is placed on one of the vertex of the cube, then flux passing through any surface of the cube is blank. अब आप समझिए, अगर कोई चार्ज रखा है कहां पे, if charge q is placed on one of the vertex of the cube. अब किसी भी एक वर्टेक्स पे चार्ज पर रखना है, ऑब्वियस है. मान लीजिए यहां पे रख दिया, तो वो कितना अंदर है, या you are taught it nicely even. It's q by 8. 8th portion, 1/8 portion of the charge is inside the cube. तो वो कितनी फील्ड लाइंस छोड़ेगा, वो सारे तरफ से भाई, मतलब फ्लक्स कितना होता है वो हम जानते हैं भाई. फ्लक्स इज इक्वल टू फ्रॉम एंटायर क्यूब. बी केयरफुल, इट्स सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0. सो इसके तहत आप क्या सोच सकते हो, सो सिग्मा क्यू इज व्हाट, क्यू बाई 8 अपॉन एप्सिलॉन 0. सो q by 8 epsilon 0. But then the flux passing through any one surface of the cube. किसी एक सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा. अब आप कितने सरफेसेस होते हैं भाई, so the cube consists of 6 different faces. so कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा एक फेस में से, या किसी एक सरफेस में से कितना निकलेगा. तो ऑब्वियस है भाई, इसका भी 6th पार्ट कर देना चाहिए. तो q by 8 epsilon 0 होल डिवाइड बाय 6, तो नन ऑफ द अबव आना चाहिए. कई बार मेरे हिसाब से लोग q by 24 epsilon 0 भी सोचते हैं, यही समझ के कि भाई 3 फेस में से बाहर निकलेगा. दैट्स नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सम. आई होप सो यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम टेलिंग. अगर पूरा क्यूब पूछा होता फ्रॉम द क्यूब,
so it would have been q by 8 epsilon 0 for sure. But किसी एक सरफेस पे से पूछा है और चार्ज को रखा है वर्टेक्स पे, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन. देख लेना ये वाला क्वेश्चन. 2 point charges, this and that are placed at this many apart. So magnitude of electric field, total electric field कितनी होगी at the center of the line joining the two charges. Again textual exercise based question है. दो चार्जेस को रखा है, कहाँ पे रख दिया है? एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है. मैग्नीट्यूड सेम है. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होएगा? तो पॉजिटिव के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होएगी? राइट साइड. नेगेटिव के कारण उसके अंदर, तो मतलब दोनों के कारण एड अप होएगी. या सो पुट ऑन द वैल्यू, विल गेट द आंसर kq upon r square. It's the formula for individual charge. So double it up, you will get the answer. The charge density of uniformly charged infinitely sphere is sigma. Simple pendulum. बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन फिर भी ये समझा देते हैं आपको. इज सस्पेंडेड वर्टिकली डाउन नियर इट. q0 इज प्लेस्ड ऑन मेटालिक बॉब इफ द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग इज थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन. देखिए इसमें क्या करना है आपको, सॉरी ये वाला पूरा सॉर्ट आउट करना है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसको सस्पेंड किया जाए नीचे, सस्पेंड वर्टिकली डाउनवर्ड है. चार्ज q0 इज प्लेस्ड ऑन मेटालिक बॉब. इसके ऊपर चार्ज जो रखा है वो q0 है. इफ द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग इज थीटा विद द वर्टिकल डायरेक्शन. अभी इसमें क्या होना चाहिए? द चार्ज डेंसिटी ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन इज सिग्मा. एक प्लेन मिसिंग है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड के तहत ये क्वेश्चन में थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन बोल सकते हो आप. ये इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? चार्ज के ऊपर प्लेट है ना, एक इनफाइनाइट प्लेन रखा है, तो किसी तरफ एक प्लेट होगी. मान लीजिए इस तरफ है, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गोइंग आउटवर्ड लाइक दिस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा तो ये चार्ज के ऊपर भी इस तरफ फोर्स लगेगा, तो ये वाला थोड़ा टिल्ट होगा, इस तरफ आ जाएगा. तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? तो नीचे की तरफ mg और राइट साइड QE फोर्स लग रहा है. तो ये वाला जो एंगल थीटा बना रहा है उसको आपको सॉर्ट आउट करना है कि सिंस कंसिडरिंग दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये रस्सी के अंदर क्या डेवलप होता है? टेंशन डेवलप होता है. तो ये सारे फोर्सेस को आपको इक्वेट करना है. कैसे आप इक्वेट करोगे? सिर्फ हिंट सुन लेना. अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा टेंशन. ये t तो ये ऊपर वाला t cos थीटा होगा और ये वाला t sin थीटा होगा. t cos थीटा विल बी मैनेज्ड बाय mg एंड t sin थीटा विल बी बैलेंस्ड बाय QE. दोनों का रेशियो ले लीजिए. sin थीटा अपॉन cos थीटा के तहत आपको कोई वैल्यू मिल जाएगी जो यहाँ पे सेट होगी. क्या चार्ज की वैल्यू आप सिग्मा के टर्म्स में लिख सकते हो. सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया. तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए. यू कैन थिंक लाइक दैट. When two spheres having 4q and minus q charge are placed at a certain distance, the force acting between them is it's very easy question कि q1 q2 upon r square दो बार लगाना है. फिर क्योंकि फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, तो कनेक्ट करेंगे तो ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देने का. तो 4q minus 2q it's 2q divided by 2. तो चार्ज ऑन स्फीयर विल बी q. Now they are kept at half of the distance between compared to the previous one. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो प्रैक्टिस करिए. पहले वाले फोर्स को f बोलिए, दूसरे वाले फोर्स को f डैश बोलिए और दोनों का रेशियो ले लीजिए. यू विल गेट द आंसर. चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन 5 कॉर्नर्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. अब रेगुलर हेक्सागन के ऑल हेक्सागन के 6 कॉर्नर्स होता है, उसमें से सिर्फ 5 कॉर्नर्स पे चार्ज रखा है. या तो ये वाला इसको बैलेंस कर देगा, ये वाला इसको बैलेंस कर देगा, लेकिन ये वाले का कोई बैलेंसिंग नहीं होएगा. तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली kq अपॉन r स्क्वायर के तहत यू विल गेट द आंसर. यू आर हैविंग द चार्ज वैल्यू, सो यू कैन अगर ये 6 के 6 चार्ज रख दें तो आंसर इज 0. एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स 0 होएगा. सो और टॉर्क के बारे में आप जजमेंट ले सकते हो. 2019 में आप पूछा गया क्वेश्चन. 3 identical charges are placed on the vertices of the square. The force between q1 and q2 is F12 and q1 and q3 is F13. Then what is the ratio of these two? Again good question. तो इसलिए समझा देता हूँ मैं आपको. एक स्क्वायर है, 3 चार्जेस रखे गए, मतलब 1 2 और 3 आइडेंटिकल चार्जेस है. मान लीजिए ये q1 है, q2 है और ये q3 है. The force acting between 1 and 2
is F12 and force acting between 1 and 3. तो देखिए force acting on 1 due to 2, this is force acting on 1 due to 3. मतलब आप समझ लीजिए इसके ऊपर फोर्स कौन कौन किस तरफ लगाएगा. तो ये वाला इस तरफ लगाएगा और ये वाला कंसिडरिंग दोज आर द आइडेंटिकल चार्जेस है. तो ये वाला उसकी तरफ ऊपर की तरफ लगाएगा. तो ये F13 है और ये F12 है. तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो व्हाट इज F13 अपॉन F12. देखिए डिस्टेंस तो इसका L ले लीजिए और ये वाला कितना हो जाएगा L बाय सॉरी इट विल बी रूट 2L स्क्वायर का है डायगोनल के वाइज. तो चार्ज तो Q ले लेना आपको, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. ये F12 की वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी K Q स्क्वायर अपॉन रूट 2L स्क्वायर मतलब 2L स्क्वायर. यू विल गेट द रेशियो आंसर इजीली. ऐसे करना है आपको. When 10 microcoulomb charge is enclosed by a closed surface, the flux passing through the surface is 5. Now another 10 microcoulomb charge is placed inside the closed surface, then the flux passing through the surfaces. पहले 10 माइक्रोकूलम था, अब और 10 माइक्रोकूलम रखा है, तो टोटल हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम. तो उसके साथ आप डबल कर सकते हो. अगर ये माइनस हुआ तो आंसर 0 हो जाएगा गॉस लॉ के तहत. The electric force acting between 2 point charges certain distance is 16 Newton. If the same two charges are kept at same distance, the medium अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में फोर्स की वैल्यू घट जाती है. F dash is equal to F by K. Where K is the electric constant. Easily you can solve. Yeah. So electric field line intensity at points in between and outside the thin spherical parallel sheets of infinite dimensions with like charges of same surface charge density are blank and blank. देखिए between और outside ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले समझा दिया है. दो प्लेट्स लेके प्लस सिग्मा दोनों तरफ रख देना है और बीच में क्या आएगा और बाहर क्या आएगा वो आपको इजीली टैकल करना है. अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस आर शोन इन फिगर. फ्लक्स लिंक विद द सरफेसेस P and Q. ये P वाला है जिसके अंदर प्लस Q माइनस Q नलिफाई हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर माइनस Q रहेगा. जबकि इसके अंदर प्लस Q माइनस Q, इसके अंदर प्लस Q रहेगा. तो इसका फ्लक्स कितना होएगा माइनस Q अपॉन एप्सिलॉन 0 गॉस लॉ की तरह सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और इसका होएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0. मैच कर लीजिए, you will get the answer. The repulsive force between two particles of same masses and charge separated by distance is equal to the weight of one of them. तो K Q1 Q2 upon R square is equal to mg. सॉल्व करेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा R. Dimension formula of Coulomb constant या K is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0. These are very important questions. प्रैक्टिस करने से आपको डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा. When 10⁻19 electrons are removed from a neutral plate, किसी में से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो पहली बात तो नेगेटिव वाले ऑप्शंस को निकाल देना है. तो चार्ज ऑन दी प्लेट बिकम्स या Q इज इक्वल टू NE के तहत. An inclined plane of length 5.60 meter making an angle of 45 degree with the horizontal is placed in uniform electric field line of this. A particle of mass 1 kg and charges is allowed to slide down the rest position and height of the slope. कोफिशिएंट 11th स्टैंडर्ड के साथ लिंक किया है. ये जेडबल नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप. पॉइंट चार्ज Q is situated at distance R on axis from one end of the thin conducting rod of length L. Again, the magnitude of electric uniform distributed along the entire length. The magnitude of electric force between again K Q1 Q2 upon R square से कर सकते हो, Q into E के तहत कर सकते हो. E की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट रॉड के कारण लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 into 1 upon R. सो यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो. हालांकि ये वाला भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जीक्यूटिव नीट के लिए है. डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन अपॉन कूलम के साथ आप देख सकते हो. अ पार्टिकल हैविंग मास m and charge q is at rest. On applying uniform electric field on it, it starts moving. So what is the kinetic energy that it travels at a distance x in the. अब इसमें क्या कर सकते हो आप क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा. तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होएगा पार्टिकल ऑफ मास m तो इस एंड चार्ज q इज एट रेस्ट. ऑन अप्लाइंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक स्टार्ट्स मूविंग. तो ये मूव क्यों कर रहा है m a इज ड्यू टू q इनटू e. तो उसका एक्सेलरेशन आपको q e अपॉन m मिल जाएगा. वो वाली वैल्यू रख दीजिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर. सो विल गेट द आंसर ऑफ वेलोसिटी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. तो वो स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है बट ये पुराने 2014 का क्वेश्चन है. टू स्फीयर्स हैविंग ओके द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द सेंटर. वो थीटा वाला क्वेश्चन किया था, ये भी करने के लायक नहीं है आपको, छोड़ दीजिए आप इसको. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर.
वो भी आपको समझाया था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 1 अपॉन r, यू आर गिविंग द वैल्यू, यू कैन सॉल्व इट आउट। ऐसे ही क्वेश्चंस बार बार आते हैं। आप देखिए, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, डाइलेक्ट्रिक मीडियम K इज F, ये उल्टा किया है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर फोर्स F है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हटा देंगे तो वो K गुना हो जाएगा। समझिए, एयर में है और डाइलेक्ट्रिक में रखा तो F बाई K, डाइलेक्ट्रिक में है और एयर में रखा तो वो बढ़ जाएगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। चार्ज 10⁻⁹ कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ द सिस्टम। ओके, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देन फाइंड द, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन r², उसके तहत आप आसानी से ये शॉर्ट आउट कर सकते हो। 2 point unlike charges having magnitude of 10 microcoulomb and -9 microcoulomb are separated by distance of this, the resultant electric field will be 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगी? जब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन हो, तब वो नेट बराबर 0 हो जाएगा। तो पॉजिटिव की इज इक्वल टू नेगेटिव की, आप दोनों इक्वेट कर दीजिए KQ अपॉन r² के तहत, यू विल गेट द आंसर। देयर एक्सिस्ट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच इन y डायरेक्शन, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर इज दिस मच। ओके, y डायरेक्शन में है, अब ये फ्लक्स होगा तो इसके अंदर आपको क्या करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो j कैरेट में है और xy प्लेन के अंदर मतलब k कैरेट, अच्छा j xy प्लेन के अंदर है। ओके, तो अगेन द आंसर विल बी 0 ओवर हियर, फ्लक्स phi इज इक्वल टू E डॉट A के तहत। 39, the Gaussian surface for calculating the electric flux due to the charge distribution can be of any shape, yeah? Charge Q2 of mass m revolves around the stationary charge Q1 in a circular orbit. Again, this is linked to the 11th standard. छोड़ दीजिए इसको, 2011 का क्वेश्चन है। 3 charges of equal magnitude are placed at the vertices of equilateral triangle. The electric field at the centroid of the triangle, it's 0 obviously, क्योंकि electric field आप एक थियरम आता है जिसके तहत आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेट फोर्स, ये भी एक इलस्ट्रेशन है अपने अंदर। सो आंसर सीधे सीधे, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस एंड द डिस्टेंस r इज गिवन बाय, सीधी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस क्या होता है 2kb अपॉन r3, और इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑन द एक्सिस एंड द डिस्टेंस r, दोनों का रेशियो लेना है क्या? तो यू विल गेट द आंसर, आई थिंक सो ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, आई थिंक सो इट विल बी इक्वेटर काइंड ऑफ थिंग। क्वेश्चन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन 2010 में ये क्या पूछा है, मेरे हिसाब से प्रिंटिंग एरर है, क्योंकि डिस्टेंस अगर r डिस्टेंस पे ढूंढना है तो वो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि एक्सिस पे 2kb अपॉन r³ है, इक्वेटर पे क्या होएगा kb अपॉन r3, तो उसके तहत आप देख सकते हो उसको। टॉर्क इज मैक्सिमम PE साइन थीटा है, तो साइन 90 इज 1, तो जब एंगल 90 होएगा तब की बात है। इफ कूलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, या सेम क्वेश्चन KQ1 Q2 अपॉन r² के तहत देख लो आप। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज 200 न्यूटन, KQ1 Q2 अपॉन r² इट्स 200 न्यूटन। अगर 10% इंक्रीज कर देंगे हम चार्ज तो, और दूसरे पे 10% कम कर देंगे तो एक का चार्ज क्या हो जाएगा 1.1 Q और दूसरे का क्या हो जाएगा 0.9 Q। फिर सॉल्व करिए, Q1 डैश Q2 डैश ले लीजिए उसको, फिर अगेन सॉल्व करना। सर्कल ऑफ रेडियस ये चार्ज डेंसिटी, ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है, हालांकि अगर करना हो तो वो चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाला क्वेश्चन, लेकिन नहीं करना, ये लाजमी नहीं है क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव काइंड ऑफ थिंग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द इनफिनिट प्लेन से सिग्मा डिफरेंटली इनफिनिट प्लेन से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। पॉइंट चार्ज causes electric flux this much to pass through a Gaussian surface if the radius of this Gaussian surface with 3 times, अगर रेडियस साइज बढ़ा देंगे तो कुछ नहीं होगा, सेम टू सेम रहेगा भाई। ये वाला क्वेश्चन भी इजी वाला क्वेश्चन है। ये देखिए डाइपोल के एक्सिस पे और इक्वेटर पे क्या होएगा, अगेन इजी क्वेश्चन। स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस व्हाट, इट्स अ स्टेशनरी चार्ज, दोनों मतलब स्टेशनरी चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रोड्यूस करेगा, है। सो here you are having the answer itself, no worries. Electric dipole is placed in non-uniform electric field in such a way that the P and E is not 0 or 180 degree, so it experiences both way. Easy question. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा न्यूटन पर कूलम, और इसके तहत आप सेट करके दूसरा वाला भी ला सकते हो। कैसे डिसाइड करने का, डायमेंशनल फॉर्मूला से इसको कोप अप कर देने का। When air is replaced by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charges given by distance, yeah, एयर को रिप्लेस करके डायरेक्टली कांस्टेंट F बाई K हो जाता है, आप जानते हो। टू चार्जेस R1 R2 रिस्पेक्टिवली ज्वाइन टुगेदर बाय द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला अच्छा है, ये मैं आपको करा देता हूँ
क्योंकि क्या होता है, अगर आपके पास दो रेडियसेस है, एक का R1 है और दूसरे का R2 है, आर ज्वाइंट बाय वायर, देखिए अगर वायर से आप ज्वाइंट करते हो तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो इसका पोटेंशियल के Q1 अपॉन R1 और इसका पोटेंशियल के Q2 अपॉन R2। एज सुन एज यू ज्वाइन बाय द वायर तो पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, तो उसके तहत आपको चार्ज मिल जाएगा और चार्ज के तहत आपको इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और दूसरा वाला के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। सो विल गेट इट नाइसली। इलेक्ट्रॉन फॉल्स और डिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इसके जैसा हमने देख लिया पहले से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द, ओके, हुज प्लेन इज XY प्लेन। XY प्लेन मतलब वो Z डायरेक्शन में, K कैरेट और I कैरेट। ये देखिए इस साल का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल, अगेन दिस इज द क्वेश्चन, वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इजी क्वेश्चन। चार्ज Q is placed at the center of one of the face of the cube, then the electric flux linked with the cube। अगर किसी फेस पे रख देंगे हम लोग चार्ज को तो वो अंदर कितना होएगा, आधा, Q/2, so it's Q/2 epsilon 0, as simple as that। The electrostatic force on a smaller sphere due to the another smaller sphere is this much, what is the distance between K Q1 Q2 upon R square, से आप आसानी से कर सकते हो। If body contains N1 protons, तो it is N1e, और N2 electrons, that is minus N2e, तो net charge is addition of this two, Q1 plus Q2। Yeah, these are the 60 questions. I know that I have skipped various questions that are not a part of good side examination। वो JEE नीट के लिए, मोर इम्पोर्टेंटली वो नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 60 क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आंसर्स रेडी रखिए अपने प्रैक्टिस करने के बाद, और फिर आप क्रॉस चेक कर लेना कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपके आंसर सही है या गलत। इफ यू वांट टू एनी इंप्रूवमेंट ऑफ फ्रॉम माय साइड, पोस्ट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। विल बी पोस्टिंग नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर नंबर 2 वेरी सून। या मैक्स टू मैक्स कल तक मिल जाएगा, शायद आपको आज शाम तक भी मिल जाए, तो फटाफट से ये वाला काम कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।